العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ رویت سنت الاعتکاف الحمدللہ 1432 سنہ ہجری کے محرم الحرام کی تیسری رات ہے۔ اس سے قبل کہ ہم سوالات و جوابات کا سلسلہ کریں، آئیے اپنے ثواب کو بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ تو نگاہ نیچی کیے توجہ سے نیتیں کریں گے تو انشاءاللہ ہو پائیں گی، ورنہ شاید ادھر ادھر دیکھیں گے، اوپر دیکھتے رہیں گے تو مشکل ہے۔ توجہ بٹنے والا کوئی کام، کوئی انداز، کوئی حرکت نہ ہونی چاہیے، کیونکہ نیت دل کے ابھار کو اور دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ خالی رٹے رٹا الفاظ بولے زبان سے یا سر ہلاتا رہے انشاءاللہ کہتا رہے اور دل میں نیت نہیں ہوگی تو پھر نیت نہیں کہلائے گی، ثواب بھی نہیں ملے گا۔ تو جو میں عرض کر رہا ہوں وہ سمجھ کر اس کو حسب حال انشاءاللہ کہیے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ مدنی مذاکرے میں اول تا آخر شریک رہوں گا۔ بلا وجہ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دھاگے دریوں یا کپڑوں کے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسرے کو اشارے کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ اعلاء کلمت الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125 میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا، اور اس میں حکم یہ ہے: ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ ترجمہ کنز ایمان: اپنے رب عز و جل کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کروں گا۔ وہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ہے: بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک مٹانی مقصود ہی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر اور جواب دینے وغیرہ کے دوران حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا۔ سوال کرنے کا موقع ملا تو اس میں بھی حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا، بلکہ یہ کہ ایسی ترکیب کرو کہ اب نگاہیں نیچی ہوں تو ایسی ہوں کہ پھر اٹھے ہی نہیں، یعنی بار بار بلا حاجت نہ اٹھیں۔ اور اس میں کیا نقصان آتے ہیں اس کا بار بار بیان ہوتا رہتا ہے۔ ادھر ادھر دیکھنے کا کیا نقصان یہ بھی ہوتا رہتا ہے، حالانکہ ادھر ادھر دیکھنا اس وقت تو خیر اجازت نہیں ہے، جب قرآن و حدیث کی باتیں بیان ہو رہی ہوں شرعاً ہی اس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ ویسے ادھر ادھر دیکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ادھر ادھر دیکھنے کے نقصانات بہت ہیں۔ امرت پر نظر پڑی، پھر خدا نہ خواستہ دل بہکا، پھر بھی نظر نہ ہٹی، عورت پر نظر پڑی،
ऐसी किसी के घुटने खुले उस पर नज़र पड़ी, रानें खुली उस पर नज़र पड़ी, इधर उधर देखने से स्कूटर पर कोई जा रहा है, पीछे बैठी है, चुटिया उसकी लहरा रही होती है, तो याद रखिए गैर औरत के बाल जो लटक रहे हैं इसको देखना भी हराम है, जायज़ नहीं है। अब इधर तो कोई खैर मैंने कहा इसको माज़अल्लाह मायूस समझते नहीं। अब ठीक है, उन्होंने हया की चादर उतार दी कुछ औरतों ने या कसीर औरतों ने, हम अपनी आंखों पर हया का पर्दा डाले रहे हैं, यही हो सकता है, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। हम इन सारी लाखों करोड़ों औरतों को पर्दा नहीं करवा सकते, कोशिश अपनी जारी है, लेकिन कामयाबी इतनी नहीं है। समझदार है आप कि वो हर तरफ बेपर्दगी है, तो अब यह कि ये बुर्का नहीं पहनती तो हम अपनी आंखों को ही बुर्का पहना दें, क्योंकि हम वो इन जैसा बुर्का पहने तो फिर गुनाहगार होंगे कि औरत की मुशावत हो जाएगी। तो कम से कम आंखों को बुर्का, ये मुहावरतन जदीद मुहावरा कह लें या जो भी कह लें मेरा, कि अपने आंखों को पर्दा दे दें। अपनी आंखें न, आंखें अगर नीचे रहने की आदत पड़ जाए ना तो फिर इंशाअल्लाह निगाहों की हिफाजत बहुत मदीना मदीना हो जाएगी। इधर उधर देखने की आदत है ना, ऊपर घूरने की, इधर देखना उधर देखना, इधर ताकना उसको ताकना, जब भी बात करी तो सीधी निगाह जो अगले के चेहरे को घूर रही है, ये आदतें रही तो बहुत मुश्किल है कि निगाहों की हिफाजत की आदत पड़े। ज़रा अगले के चेहरे को देखे भी अगर करने पर हम कुदरत हासिल नहीं पाते, अपनी कोशिश नहीं करते, सीरियस नहीं लेते, तो गैर औरतों से बातों का मौका आएगा तब भी यही हालत रहेगी शायद, कि वो चेहरे पर नज़र उसके पड़ती रहेगी, फिर खाली चेहरा नहीं दिखेगा और बहुत कुछ दिखेगा। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। मुझे वो हदीस याद आ रही हिदायत शरीफ में कि किसी औरत ने शहवत के साथ किसी औरत के महासिन को देखने वाले के आँखों में वो क़यामत के रोज़ पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा। ज़रा धूल उड़ती है हवा से तो अगर कोई ज़र्रा पड़ जाए आँखों में तो कैसा परेशान करता है, और अगर मिर्च का ज़र्रा तो तिगनी का नाच रचा देता है। धुएं से प्याज कट रही है तो आंखें इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, शीशा पिघला हुआ कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो इस तरह के मौके पर इन अज़ामात पर भी अगर तवज्जो जाए ना कि यार तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मामूली धूल का ज़र्रा तो शीशे का पिघला हुआ तो ज़रा यकीनन कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर कोई कहे कि मैं अल्लाह का अज़ाब बर्दाश्त कर लूँगा तो वो तो काफिर हो जाएगा, मुसलमान ही नहीं रहेगा। कि अल्लाह के अज़ाब को हल्का समझता, आसान समझता है, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। ये नहीं, जैसे बात जाहिल लोग बोल देते हैं कि ठीक है यार हम हैं तो मुसलमान ना, जहन्नम में हमेशा थोड़ी रहेंगे, बाद में हमको जहन्नम से निकाला तो जाएगा, तो चलो गुनाह कर लेते हैं कि बाद में चलो जहन्नम से निकलेंगे तो सही ना यार। तो ये भी अल्लाह के अजाब को हल्का समझने की वजह से कह रहा है कि चलो मैं थोड़ा बहुत अजाब बर्दाश्त करूँगा, थोड़ा बहुत नहीं होगा, वो भी हज़ारों साल का अजाब हो सकता है। खुदा की कसम एक लम्हे के करोड़वें हिस्से को भी अजाब के कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अगर कोई कहता है मैं बर्दाश्त कर लूँगा तो वो मुसलमान नहीं है। अभी क्या चलो थोड़ा अरसा जहन्नम में रह लूँगा मैं, तो अगर इस तरह का कोई नौज़ु बिल्लाह वो कहता है तो वो तो फिर अब हमेशा रहेगा जहन्नम में कि अजाब को इसने अल्लाह के हल्का जाना कि मैं थोड़ा सा बर्दाश्त कर लूँगा माअज़ल्लाह। तो अब वो थोड़ा नहीं, अब हमेशा के लिए वो थोड़ा के अल्लाह से आफियत का सवाल करना चाहिए कि या अल्लाह हमें एक लम्हे के करोड़वें हिस्से के लिए भी तू अजाब ना देना, नाराज़ी ना होना हमसे। ये क्या मतलब बात भी बेवकूफ़ी कि मतलब मैं थोड़ा सा अजाब बर्दाश्त कर लूँ तो, और अपनी हमाकत पर मोहर लगा दी और ईमान से हाथ धो बैठा, गया काम से, निकाह भी टूटा, सब कुछ गया। ये आम है, ये जुमले इस तरह के बोलते हैं लोग। ठीक है मुसलमान है ना, ठीक है आज़ादी तो मिली जाएगी, जन्नत में निकलेंगे तो सही ना। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बल्कि बाबा बेबाकी का ये आलम है कि जैसे नज़र नीची करने के हवाले से वो जो रिवायत बयान की जाती है ना कि वो नज़रों के हवाले से कि पहली नज़र माफ़ है और दूसरी नज़र मतलब पहली नज़र माफ़ है, अगर उठे तो फेर लो। तो इतने बेबाक हैं, ये कान से सुनी हुई बात अर्ज़ कर रहा हूँ, या पहली नज़र है ना, पहली नज़र माफ़ है ना, क्या मसला है यार। माअज़ल्लाह, तो पहली नज़र को अगर कसदन पहली डाली ना तब भी माफ़ नहीं है। पहली नज़र माफ़ है, इसका मतलब यह है कि बेइख्तियार पड़ गई, इरादा नहीं था और खामखा पड़ गई। जैसा बाजार में निकले तो पड़ जाती है, बच नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। तो अब बहरहाल बाजार हो या कोई भी जगह हो, अगर अचानक पहली नज़र पड़ गई तो वो इस सूरत में माफ़ है कि उसको फेर ले। अब नज़र पड़ी यानी टारगेट पे पहुंची, अब उसने वहाँ थोड़ा तवक्कुफ किया, रुका उसको देखने के लिए, अब ये गुनाह उसका शुरू हो गया।
नजर पड़ते ही इसको फौरन फेर ले तो बचत है। जान बूझकर अगर वो थोड़ा भी देखेगा ना तो फंसेगा। ये तो बिल्कुल बहुत सख्त बात है। बल्कि कोई भाई नहीं, जाहिल लोगों में ये यूं थोड़ा बहुत जाहिल लोगों में ये पता होता है कि यार पहली नज़र माफ़ है, तो एक नज़र ऐसी भर के डाल दो कि बस वो देखे ही जाओ, है ना, बोलते हैं ना। इस तरह जाहिलों में है बाबा, ये अल्लाह बेबाक हैं, बेबाक। तौबा तौबा यार, ये तो इरादतन अगर पहली नज़र डालेगा तो ये माफ़ नहीं है ना। ये एक ऐसा फेल है कि इस पर ये इतनी मतलब ढिठाई करता है ये, कि ये ऐसी बात कभी भी अकेला नहीं करता। जब इसके अंदर 4 दोस्त होंगे, कोई इसको बिल फर्ज कोई नेकी की दावत देकर समझाएगा ना, तो ये उसको मौलाना को या नेकी की दावत देने को ये जवाब देगा, और उसके साथ जो 3 दोस्त खड़े होंगे ना, वो बाँचे खोल खोल कर हंस रहे होंगे। ये हाल है बाबा इस वक्त, कोई मतलब भाषा नहीं समझती कौन भी। अल्लाह पाक हिदायत पर इंशाअल्लाह मदनी चैनल इनके घरों में जाकर इनको सुधारेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, एक नीयत ये रह गई थी, कहका लगाने और लगवाने से बचूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे बाबा जान, आपने अभी नियतें करवाई तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी की बरकत से एक शऊर इस्लामी भाइयों में बेदार हो चुका है नियतों के हवाले से। तो अब अच्छी अच्छी नियतें कर लेनी चाहिए। अब ये नियत जो मैं कर रहा हूँ ये दुरुस्त है या नहीं, ये कैसे पता चले? इसके लिए तो वो आला हज़रत ने लिखा कि इल्म नियत हो, और एक जगह फरमाया कि इल्म नियत बहुत अजीम और वसी वासे इल्म है। तो मैंने क़ुतुल क़ुलूब में पढ़ा था, जो हज़रत अल्लामा सैयदी अबू तालिबुल मक्की अलैहि रहमतुल्लाह अल कवी की अव्वलीन तसव्वुफ़ की कुतुब में से इमाम गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाह अल वाली ने भी क़ुतुल क़ुलूब से इस्तिफ़ादा किया है। और मेरे आका आला हज़रत ने सैयदना अबू तालिबुल मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में फ़तवा रज़विया में लिखा है कि हम इनको मुजतहिद मानते हैं। इतने बड़े आलिम थे, इतने बड़े आलिम थे। तो इन्होंने लिखा है कि एक दौर में बाकायदा इल्म नियत भी एक चैप्टर होता था, बाब होता था। जो इल्म हासिल करते थे ना, उनको बाकायदा इल्म नियत का बाब भी पढ़ाया जाता था, इल्म नियत की तालीम दी जाती थी। ये बुनियादी उलूम में से, और अफसोस के अब मैं क्या कहूँ, बड़े बड़ों को इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं है। हालांकि हैरत की बात है, मौत कहने के जो अहले इल्म है उनको तो पता होता ही है कि बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस, ना सिर्फ बुखारी शरीफ की और कई कुतुब अहादीस का आगाज़ इसी हदीस से हुआ है, इन्नमल अअमालु बिन्नियात। अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। फिर भी तवज्जो नहीं है। बड़ी बड़ी शुरूहात उलमा इसकी लिख कर गए, लेकिन अब नीयत की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। मैं नीयतें करवाता हूँ तो ऐसा लगता है कि शायद बहुत को बोरियत होती है, बाद में यार अभी तो नीयतें हो रही हैं, अब चलेंगे अभी तो इसलिए फिर ऐसे लोग आने से बेचारे महरूम रह जाते हैं। तो जो नहीं आते उनको 1.5 घंटे के लिए भी आने दो, 1 घंटे के लिए भी लाओ इनको, या आधे घंटे के लिए भी किसी तरह भी इनको राजी करके लाओ। आज ये आपको आधा घंटा देगा, इंशाअल्लाह इसको लुत्फ आएगा तो दूसरे दिन दूसरी बार ये पूरा देगा घंटा, फिर इंशाअल्लाह पूरा इज्तिमा अटेंड करेगा। और चाहे वो इज्तिमा हो, चाहे दर्स हो, चाहे चौक दर्स हो, चाहे मदरसतुल मदीना हो, चाहे जामियतुल मदीना हो, चाहे जेल खानों के, चाहे तालीमी इदारों के हमारे मदनी काम हो, इन सब का रुख एक ही है, वो है मदनी काफिला। सारी मजालिस, सारे शोबाजात यूं समझो कि मदनी काफिलों के लिए काम कर रहे हैं कि हमें हर जगह से मदनी काफिले सफ़र करवाने, इसलिए कि हमने अपना जो वो मकसद बनाया ना, मेरा मदनी मकसद क्या है, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। तो इस मदनी मकसद के हुसूल के लिए मदनी काफिला बिल्कुल लाजमी। इसके बगैर आप मुझे बताओ क्या सूरत है। किताबें तो पहले से वो तो है ही, पढ़ने वाले पढ़ते हैं, तकरीरें जलसे जो भी हो तो हमने जब से आँख खोली सब हो रहे हैं,
लेकिन वो सूरत हाल जो दावत इस्लामी ने जब अमली तौर पर इस्लामी भाइयों में नाफिज करना शुरू की, कितने बेनमाजी नमाजी बन गए, कितनी मस्जिदें आबाद हो गई, कितनी मस्जिदें नई तामीर हो गई, और माशाअल्लाह कैसी वो चेहरे पर दाढ़ियाँ जगमगा रही हैं। मैंने दाढ़ी रखी थी किसी दौर में, मुझ पर हैरत करते थे लोग, यार मुझे बात तो समझाते थे यार क्या तुम जज्बात में आगे दाढ़ी रख ली है, लेकिन वो नहीं, घर वालों ने मेरे एहतिजाज नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब मरहूम की अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दाढ़ी थी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे घर में किसी ने एहतिजाज नहीं किया। मैंने अगरचे वालिद साहब को नहीं देखा, लेकिन ये हकीकत है कि वालिद साहब की पूरी दाढ़ी थी। उन्होंने इमामत भी कुछ अरसा कोलंबो में की थी एक मस्जिद में, वैसे नौकरी पेशा थे, मगर वो रज़ाकाराना तौर पर उसी मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी इमामत नसीब हुई है रज़ाकाराना तौर पर। जब कोलंबो गया था शायद 2 महीने या इतना कुछ थोड़ा बहुत टाइम मैंने वहाँ की है इमामत। इमाम साहब नहीं थे, सफ़र पे गए थे अपने वतन, तो मुझे खड़ा कर दिया। मैं तो मुसाफिर की नीयत से गया था, मुझे मुसल्ले पर ही बैठा था मैं, बोला नहीं तुम मगरिब पढ़ाई है पता नहीं, बस यहीं बैठे बैठे बोला आप मुकीम की नीयत करो ताकि 5 नमाज़ें पढ़ाओ। तो मैंने फिर चला ठीक है, मैंने अपनी मुद्दत बढ़ा दी, ठीक है पढ़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो इमाम साहब वहाँ से आ गए, हिंद के इमाम साहब थे, वो तशरीफ़ ले आए, तो फिर मैं अपने तौर पर बाबुल मदीना आ गया। मैंने कोई तनख्वाह नहीं ली अल्हम्दुलिल्लाह, अपने शौक़ से पढ़ाता रहा, बयान करता था, और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी अभी बनी नहीं थी, दावत इस्लामी 79 की बात है साहब। मजलिसों के मदनी कामों का रुख मदनी काफ़िलों की तरफ है। अब अगर कोई मजलिस का जिम्मेदार ही मदनी काफ़िले में सफ़र नहीं करता तो मेरा मशवरा है उसको बदल देना चाहिए, क्योंकि मैं मदनी काफ़िलों के ज़रिए पूरी दुनिया में मदनी कामों की धूमें मचाना चाहता हूँ। ये मेरे जीते जी अल्लाह करे मेरा ये फ़लसफ़ा आप लोगों की समझ में आ जाए। अगर काफ़िलों की तरफ तवज्जो नहीं दी गई ना, तो फिर अपने अपने इलाकों में महदूद रहोगे, और यही मतलब वो जिसको हम अपनी मेमनी बोलते ठेकड़े मारते रहोगे। बाहर निकलो, बाहर निकलो, निकलो निकलो निकलो, सफ़र करो। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को देखो कि मैदान अरफात में हिज्जतुल वदा के मौके पर 1,12,000 थे, लेकिन मदीने मुनव्वरा में जन्नतुल बकी में तकरीबन 10,000 हैं। 1,14,000 कहाँ गए? दुनिया में फैल गए, इस्लाम के डंके बजा दिए, हर तरफ दीन का डंका बजा दिया, रोशनी रोशनी हो गई। तो इसलिए बस जब तक आप सफ़र नहीं करोगे काफ़िलों में, आप बोलोगे इधर भी काम शुरू हो जाए तो उधर भी काम शुरू हो जाए, तो फिर ऐसे ही शुरू होगा, वो पायदारी नहीं आएगी, वो शुरू होना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनको तो काम करना ही नहीं आएगा ना, आप जाके सिखाओगे तो होगा ना। तो बेचारे अपने तौर पर पता नहीं क्या करेंगे। फिर वो मुझे पता है ना शुरू शुरू में क्या होता था, काम शुरू होता था, फिर वो लड़ाई भिड़ाई, तो बोला मुझसे मशवरा नहीं, मुझे नहीं पूछा, और तेरा यूँ, तो पता ही नहीं बेचारे बिल्कुल, वो जैसे नए नमाजी गुल्लड़बाजी, इनको कुछ पता ही नहीं हो तो क्या काम करना है उन्होंने। तो इस तरह वो करते थे, ना नमाज आती थी ना कुछ आती थी, और वो लड़ भिड़ के काम का सपाटा कर देते थे। तो अब ये कि आहिस्ता 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 अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़िलों की बरकतों से, पर मदनी काफ़िला कोर्सों में से जो मंझकर इस्लामी भाई वो तरबियत याफ्ता जो है वो इस तरह मतलब जा रहे हैं आ रहे हैं। अब माशाअल्लाह काम में बड़ी मदनी बहारें आ रही हैं, दुनिया भर में धूम मची हुई है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। मदनी चैनल ने तो पता नहीं कहाँ कहाँ दावत इस्लामी को मुतारिफ करवा दिया है, अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की रहमत से। तो हर एक का रुख जो है ना मदनी काफ़िला, मदनी काफ़िला, मदनी काफ़िला, अल काफ़िला चल काफ़िला, कल नहीं बल्कि आज काफ़िला, हाथों हाथ काफ़िला। क्या हाथों हाथ क्या मतलब? तो कल सुबह काफ़िला, और क्या अभी रात से अभी नियत करो तो काफ़िले का समझो सफ़र तुम्हारा शुरू। अभी 72 घंटे चाहिए मेरे को। यूं हाँ, अगर कोई दे दे हाथों हाथ, जुम्मा हफ्ता इतवार है कोई सुबह काफिले में सफर करने वाला, सुभान अल्लाह। चलो मदनी तरबियत गाँव वालो, तुम्हें काम मिल गया, मैदान में आ जाओ, शाबाश, अल्लाह इनको मदीने का काफिला नसीब करे, मीठा मदीना दिखाए। बारिश के पहले कतरे ये गिरे 2-3 इस तरफ से, उठिए नाम लिखवाइए, माशा अल्लाह, मरहबा। अल्लाह सुन्नतों का पाबंद, नमाजों का पाबंद कर दे, आपको जन्नतुल फिरदौस में प्यारे हबीब का पड़ोस दे दे। मेरा दिल खुश कर दिया इन लोगों ने, सुभान अल्लाह। और मेरे दिल को कौन खुश करेगा, सुभान अल्लाह। सुबह काफिले में सफर कर जाओ, अल्लाह तुम्हें मदीना दिखाएगा, मक्का दिखाएगा, काबा शरीफ के जलवे देखोगे, और इंशाअल्लाह खूब तवाफ के मजे लूटोगे इंशाअल्लाह। अरे बट्टा ले लो, काफिला 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 अपने। इसके बगैर आप बोलोगे इधर बैठे बैठे दुनिया भर में काम हो जाएगा, तो ये मुमकिन लगता नहीं है। ठीक है, मदनी चैनल भी क्या खाली थियरी देगा,
जब तक प्रैक्टिकल नहीं कराओगे ना, आप जा के लोगों को नमाजें नहीं सिखाओगे, इनको कुरान नहीं सिखाओगे, इलाकाई दौरे करके डोर टू डोर जिसको बोलते हैं, घर घर जाकर आप दुकान दुकान जाकर इनको समझाकर बुझाकर नेकी की दावत देकर तरगीब दिलाकर आप मस्जिदों में नहीं लाओगे, उस वक्त तक काम नहीं होने का। खाली बैठे बैठे काम हो जाता तो फिर हो गया। हमारे असलाफ के आप मतलब तारीखें पढ़ते हैं, कोई कहाँ था कोई कहाँ था कोई कहाँ था, और अब कहाँ का इनके मज़ारात बने हुए। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह जो अजमेर शरीफ में तशरीफ़ फरमा, वो भी कहीं और थे, फिर इनको अजमेर का हुक्म मिला। दाता साहब भी कहीं और थे, हुक्म हुआ तो मरकज़ुल औलिया बन गया, लाहौर में आप जलवा फरमाए। और वो 10,000 साहबा का तो भी मैंने मिसाल दी, 1,14,000 मदीने में नहीं है, जन्नतुल बकी में ज़ाहिरी तौर पर वो आराम फरमा नहीं है, पता नहीं कहाँ का इनके मज़ारात है। हालांकि मदीना हमको मीठा लगता था कि साहबा करम को मीठा नहीं लगता था। हमको क्या मीठा लगा, हम तो खोटे खोटे खाली बोलते हैं, बस दावे करते हैं। वो वाकई आशिक थे। शाबाश, जल्दी जल्दी मेरे मीठे मीठे मदनी बेटो, जल्दी जल्दी मदनी काफिले में चल निकलो, खूब सफर करो, दिल अत्तार की दुआएं लो, अल्लाह तुम्हें मदीना दिखाए, सबसे सबसे गुंबद के जलवे दिखाए भी और तुम्हारे सीने में बसाए भी। बाबा आप फरमा रहे हैं कि इस तरह मदनी काफ़िलों में सफ़र करें और दुनिया भर में, सारी दुनिया में ये सफ़र करके इस्लाह की सूरत की कोशिश करें, तो क्या इसके अंदर सिर्फ दूसरों की इस्लाह का इनको मतलब सिलसिला होगा, या कुछ अपनी कि अब मैं हूँ ही नेक ही नहीं हूँ, ना मैं दाढ़ी नहीं है मेरी, इमामा भी नहीं बांधता, या इमामा बांधता हूँ तो मतलब नमाज़ों में सुस्ती होती है, अभी तो मेरा अपना ही जो है ना वो मामला ऐसा है कि मैं दूसरों की इस्लाह नहीं कर सकता, तो मदनी काफ़िले में फिर मैं कैसे सफ़र करूँ? बराबर है। तो इसमें तो आपको ज़्यादा ज़रूरत है मदनी काफ़िले में सफ़र की, कि वो अंडरस्टूड है कि जब आशिकान रसूल की सोबत मिलेगी तो वो जो आप जितना अरसा इनके साथ रहोगे तो नमाज तो खुद ही जहन बन जाएगा आपका, पढ़ना ही इनके साथ, रहना ही मस्जिद में, तो मस्जिद में रहे और नमाज ना पढ़े कैसे होगा। तो इनकी सोबत से आप खुद इंशाअल्लाह बदल जाओगे, अल्लाह ने चाहा तो। दाढ़ी मुंडे भी हमारे यहाँ सफ़र करते हैं, पेंट शर्ट वालों को भी इजाज़त होती है सफ़र करने की, बेनमाजियों को भी इजाज़त होती है, किसी पर पाबंदी नहीं है। आप जिस जो ने घबराए नहीं, आप बिल्कुल बिला तकल्लुफ सफ़र करें ना। हमारे यहाँ कोई ज़बरदस्ती का कायदा है कि भाई अब काफ़िले में सफ़र किया है तो आपको दाढ़ी तो रखनी ही पड़ेगी। अगर कोई नादान ऐसा ज़िद करता है रखनी ही पड़ेगी तो वो उसकी गलती है, हमारा कोई ऐसा कानून नहीं है। हम सिर्फ यानी कि तरगीब, हमारा काम तरगीब देना है। मार कर किसी को ना नमाज पढ़ानी है, मार कर भी नमाज हम नहीं पढ़ा सकते। सज़ा देना है तो वो हाकिम देगा, हाकिम इस्लाम हो तो, अब वो भी नहीं, तो इसलिए वो हम तो सिर्फ तरगीब दिलाते हैं। शरीयत के दायरे में को नमाजी बनाने की आप कोशिश कीजिए अपनी औलाद को, लेकिन अब नाजुक दौर है, तौबा, यानी कि नमाज नहीं पढ़ी तो बच्चे को कुछ भी नहीं बोलते। बच्चा स्कूल का नागा कर दे तो तड़ाक से चाटा पड़ता है, लेसन नहीं याद किया तो तड़ाक से चाटा, उसको खींच खींच से बिस्तर से निकालेंगे, चाहे सर्दियों से ठिठर रहा है कि तुझे स्कूल जाना है, नमाज के लिए नहीं निकालेंगे कि चल तुझे नमाज पढ़नी है। नमाज का वक्त गुजर चुका है, स्कूल के लिए उठा रहा है, नमाज के लिए नहीं उठाते कि जल्दी उठा लिया कि चलो बेटा नमाज पढ़ लो ना। ये बहुत थोड़े हैं, इसे अल्लाह नसीब करे, हमारे नसीब अच्छे करे। नतीजा सामने है ना बाबा, हाँ नतीजा सामने ही है कि अब इस वक्त जो तवज्जो आने वाली नस्ल की तालीम की तरफ है, नमाज की तरफ नहीं है। वो दुनियावी तालीम की तरफ। हाँ दीनी तालीम हो ना तो उसमें तो नमाज ऑटोमेटिक, मतलब बेनमाजी हो भी तो वो ऐसी सोबतें मिल जाती हैं कि नमाजी आदमी बन जाए। तो बचपन से बाबा बच्चा देख रहे हैं ना कि अगर ये नमाज की इतनी अहमियत होती तो मेरे माँ बाप मुझे नमाज के लिए तो जगा देना, जिस चीज की अहमियत थी मेरे माँ बाप ने मुझे उस तरफ लगा दिया। खुद भी पढ़ते अगर तो खुद भी नहीं पढ़ते माँ बाप, ना टीचर पढ़ता है, ना लेक्चरर पढ़ता है, ना प्रोफेसर पढ़ता है, तो क्या मतलब है ना कि इनके स्टूडेंट्स नमाज पढ़ेंगे। बहुत मुश्किल है, कोई बेचारा जिसको माहौल मिल गया, कोई अल्लाह का नेक बंदा मिल गया, नेकी की दावत मिल गई या कुछ ऐसा तौफीक हो गई, नमाज पढ़ ली, जुम्मा पढ़ लिया, बाकी तो हालात ना गुफ्ता बे हैं। अल्लाह ताला की फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर करोड़ा करोड़ रहमतें हों। आमीन सुम्मा आमीन। अब ये पढ़ा था कि फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर वालों को तहज्जुद के लिए जगाते, उनको तहज्जुद की नमाज पढ़ाते, खुद इनके साथ पढ़ते। अल्लाह 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 अल्लाह। अब तो नमाज फजर का मसला हो गया। हाँ हाँ, जब आप जख्मी हो गए, कातिलाना हमला हुआ था, जान पर बनी हुई थी, बहुत ही नागुफ्ताबे हालत थी आपकी, उस वक्त भी पूछा नमाज का वक्त, हाँ नमाज क्या बात है। तो फरमाया कि नमाज 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 के बगैर आदमी किस काम का।
फारूक आजम फरमाते उस वक्त उस हालत में, अब तो यहाँ एक फुड़िया हो जाए तो नमाज निकल जाए अपनी, सर में दर्द हो जाए तो नमाज कदा हो जाए, बुखार आ जाए तो करके पढ़े, नमाज की तौफीक नहीं है। तो सैयदना फारूक आजम पर कातिलाना हमला हुआ, जख्मों से चूर चूर, खून आलूद है, और फिर भी आपने इस हालत में भी नमाज को नहीं छोड़ा। कि इमाम अली मकाम को देखिए ना, जख्मों से चूर चूरे, सारे मतलब है कि खानदान शहीद हो चुका है कमोबेश, और लाशों के अंबार हैं। यानी इधर देखते हैं तो खानदान रिसालत के महकते फूल खाके करबला पर खून आलूद पड़े हैं, उधर देखते हैं तो वो यजीदी लश्कर जो है वो तलवारें चमका रहा है। इस हालत में भी जब नमाज का वक्त आया कि आज जुम्मा है, नाना जान की उम्मत ने नमाज पढ़ ली है, हुसैन ने नमाज नहीं पढ़ी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसी वक्त अपना सर जो था वो सजदे में रख दिया दुश्मनों की मौजूदगी में, और दुश्मनों ने भी इस मौके को गनीमत जाना कि अगर ये शेर है, ये अगर उठा तो फिर हमारी खैर नहीं है। तो सजदे की हालत में इनकी गर्दन पर पाए दर पाए वार करके आपको शहीद कर दिया। तो अल्लाह ताला हमें इमाम अली मकाम का सदका नसीब फरमाए, फैज़ान सहाबा और अहले बैत नसीब फरमाए। हर सहाबी नमाजी था, हर अहले बैत का करबलाई जो था वहाँ सब नमाजी थे। हम खाली मतलब नियाजी बनकर रह गए। खिचड़ा बेशक तबर्रुक है, लेकिन नमाज बहुत बड़ा तबर्रुक है। तबर्रुक माने बाबरकत, बरकत वाला। यकीनन खिचड़ा जो है जो नियाज के तौर पर बनाया गया वो बाबरकत है, मानता हूँ, लेकिन नमाज तो यकीनन उससे भी बाबरकत है, बड़ा तबर्रुक है, तबर्रुक आज़म है। तो नियाजी बेशक रहो, नहीं हो तो बनो, नियाजी बनो, नियाजी रहो, मगर पहले नमाजी बनो। यानी नमाजी और नियाजी दोनों साथ साथ रहो। ये नहीं कि चलो पहले नमाजी बन जाओ तो फिर नियाजी बनूंगा, तो बस नमाजी और नियाजी 1 2 3 एक साथ। नियाज अभी तक नहीं खाई या नहीं पकाई तो कोई तौबा करने की हाजत नहीं है, गुनाह नहीं है ये। लेकिन नमाजें जितनी नहीं पढ़ी तौबा भी करो और इसकी कज़ा भी करो, वरना याद रखो कि जो जानबूझकर एक नमाज भी तर्क करता है ना, उसका नाम जहन्नम के उस दरवाजे पर लिख दिया जाता है जिससे उसने दाखिल होना है, तो उसकी एंट्री लिख दी जाती है। और ये कितनी मतलब तशवीश की बात है कि जिसका नाम जहन्नम के दरवाजे में दाखिल होने वालों की फहरिस्त में आ जाए, माअज़ल्लाह। आप इसको यूं सोचो कि अपने मोहल्ले में आपका नाम थाने में इंटर हो जाए। बाज हिस्ट्री सीटर शायद बोलते हैं इसको, इनका थाने में नाम होता है, इन बदमाश होते हैं इलाके के, तो इनका नाम थाने में होता है। इलाके से बाहर जाना है तो वो थाने में सलूट करना पड़ता है, इनको एंट्री करानी पड़ती है कि मैं जा रहा हूँ इतने वक्त के लिए फुला जगह। इलाके से बाहर वो नहीं जा सकता। वो ठीक है, वो लेन देन करके जाते आते हैं, उसकी बात दूसरी है, लेकिन वो कानून जो अर्ज कर रहा हूँ इस तरह का है। तो अगर किसी, आप सोचे कि अगर हमारा नाम थाने में आ जाए तो ये कितनी बड़ी परेशानी की बात है, तशवीश की बात है कि अब इलाके से बाहर नहीं जा सकते, हम इस लिस्ट में आ गए मुजरिमों की। अब इलाके में एक पटाखड़ी फूटेगी तो जितने को नाम है सारे लाइन में लगो, एक मतलब गोली चली सारे लाइन में लगो, सबसे बासपुरस होगी कि तुम ही लोगो। इधर चोरी हो गई, हाँ भाई चलो सब इसको बुलाओ, उसको पकड़ो, उसको लाओ, जितने भी ये हिस्ट्री सीटर है ये सब आएंगे और इन सब से पूछ के जो कि भाई चोरी किसने की, बताओ तुम लोगों ने की, तो सब मारते हैं। तो यानी कि बिल्कुल वो ना मर सके ना जी सके, जिसको बोलते हैं ना, वो यानी कि ये कानून इस तरह के हैं हमारे यहाँ। अमल होता है नहीं होता है इसकी तहकीक में ना आप पढ़ सकते हैं ना मैं पढ़ सकता हूँ, ऐसा है। तो ये है कानून। डकैती पड़ी ये सारे मरे। और यूं मुजरिम जो पकड़े जाते हैं ना, बड़े बड़े केस पकड़े जाते हैं तो इस तरह भी पकड़े जाते हैं। जैसे कोई बड़ा पावरफुल आदमी का कत्ल हो जाए ना इलाके में, किसी बड़े आदमी का, जिसमें उन्हें शोर मच जाते हैं, वो हड़ताल ने हंगामे, तो फिर ये सब की पेशियाँ और सबको तड़ा तड़ी पड़ा पड़ी। अच्छा, फिर इनमें से निकल आता है या इनको पता होता है, ये सब होती तरकीब है, इन लोगों को उमूमन पता होता है, इन्हीं की टीमों के आदमी होते हैं, तो ये पकड़ा जाता है। या फिर क्या होता है कि बाज़ औक़ात वो हड़तालें, हंगामे, धमकियाँ, फायरिंग और जलाओ घेराव, तो फिर ये मजबूरी हो इनकी, गो गलत मजबूरी है, लेकिन ये मजबूरी होती है कि फिर आले के बदले माला जिसको हम बोलते हैं
تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح، وہ کسی کو پکڑ کے کھڑا کر دیا جاتا کہ یہ تھا، اب مارا گیا، اس کو بیچارے کو پسٹن بھی پکڑنا نہیں آتی اور پتہ چلا کہ بار اس نے اس کو گولی سے اڑا دیا تھا۔ یوں بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں سب ہوتا ہے۔ یہ جیلوں میں جو سیر کرے اس کو پتہ ہوگا کہ کتنے بیچارے غلط فہمیوں کی وجہ سے یا بدعنوانیوں کی وجہ سے خامہ کا بے قصور اندر پڑے ہوتے ہیں۔ کیس بھی ان کے کوئی چلانے والا نہیں ہوتا، کوئی ان کا نہ وکیل ہوتا ہے، نہ کوئی بیچاروں کا حمایتی ہوتا ہے، نہ کوئی سورس ہوتی ہے، نہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ میرے کو ایسے داستانیں پتہ چلی ہیں، مطلب بتاتے ہیں کہ اپنے کو خون آیا آنکھوں میں کہ ہم یار کچھ مدد کریں لیکن نہیں کر سکتے۔ ان کے بال بچے مطلب بیویاں مر جاتی ہیں، ماں باپ مر جاتے ہیں، وہ نکالنے والا نہیں ہوتا، وہ اندر خود ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائیں، نہ کیس چلتے ہیں، نہ کچھ، نہ سزا بھی نہیں، بس پڑے ہوتے ہیں اندر انتظار میں کہ کوئی ایسا کرشمہ ہو جائے اور ہم باہر نکل آئیں۔ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ کاش کوئی ایسا دور آ جائے کہ جیلوں کی بھی چھان بین ہو، ادھر سے بھی جو بے قصور، ہاں قصوروار ہیں میں ان کی حمایت نہیں کر رہا، جو بے قصور ہیں ان کی حمایت تو میں کروں یا نہیں کروں، وہ تو ہیں مظلوم، اس کی آہ لگے گی تو بیڑا غرق ہو جائے گا جس نے جان بوجھ کر اس کو بند کروایا یا بند کیا ہے، یا جو خامہ کا ڈھیل دے رہا ہے اس کی مطلب رہائی کی صورت میں جو اس میں پھنسے ہوئے یہ بچیں گے نہیں، چاہے میری کھوپڑی گولی سے اڑا دیں، یہ بچ نہیں سکتے، آخرت میں نہیں بچیں گے۔ اللہ ظلم و استبداد سے بچا، میں یقین دلاتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے، ایسے واقعات آئے میرے پاس، میں تڑپ گیا ہوں کہ اس بیچارے کا کیا ہوگا۔ اچھا اس کی ماں بھی مر گئی، اس کی بیوی بھی مر گئی، اور کچھ پتہ نہیں کہ ہے کیا، بولتے ہیں لوگ ہمارا وہ لاپتہ ہو گیا ہے، 8 سال سے لاپتہ ہے، 12 سال سے لاپتہ ہے، پتہ نہیں کہاں بیچارہ جیل میں سڑ رہا ہوتا ہے۔ وہ اصل قاتل تو وہ تو یوں کسی کا باپ کی طاقت ہے، پکڑ کے دکھا میرے کو، تو اس کو یہ پکڑ نہیں سکتے تو اس کو پکڑ کے بند کر دیتے۔ وہ بیچارہ جا رہا تھا اپنے گھر کی طرف، نوکری سے آ رہا تھا یا گھر سے نکلا تھا باہر، آج تیرا انتظار تھا، اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ گھر والوں کو، خاندان والوں کو کچھ نہیں پتا چلتا، وہ بیچارے سمجھتے وہ اغوا کر گیا، کسی نے مار کے پھینک دیا، یا خود گھر سے وہ لڑکے بھاگ گیا، یہ ہو گیا، طرح طرح کی قیاس آ رہی ہیں۔ یہ بابا جی کبھی 7 شریف دوڑاتے ہیں تو کبھی مطلب یعنی ٹھٹے شریف دوڑاتے ہیں تو کبھی شجاول دوڑاتے ہیں تو کبھی شاہ حقیق دوڑاتے ہیں، دوڑاتے رہتے ہیں۔ داتا دربار میں جاؤ، ادھر وہ بیٹھا ہوا بھیس بدلی کر کے ملنگ بن گیا، اس کو ملنگوں میں ڈھونڈو۔ اب ملنگوں پہ ملتا ہے نا، وہ اسپتال کی پلنگوں پہ ملتا ہے، وہ بیچارہ پڑا ہوتا سریوں کے پیچھے۔ تو ایسے مظلوم لوگوں کی آہیں ابھی نہیں تو مرنے کے بعد، ہائے اللہ توبہ نصیب کرے۔ تو وہ ظالموں کی مذمت میں خود اپنی طرف سے نہیں کر رہا، قرآن پاک کر رہا ہے ان کی مذمت۔ اور اب جانا چاہتے ہیں ظالم کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ صد اللہ فاضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی مشرکین جنہوں نے سید الطاہرین افضل الخلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مذمت کی، کس کروٹ پلٹا کھائیں گے کے تحت لکھا ہے موت کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جہنم کی طرف، اور وہ برا ہی ٹھکانہ ہے۔ یعنی موت کے بعد یہ ظالم کس کروٹ پلٹا کھائیں، یعنی ان کو پتہ چل جائے گا، اس کی سزا پائیں گے۔ ظلم کا انجام پڑھ لیجئے، وہ بڑا سخت عذاب ہے ظالموں کے لیے۔ چاہے مسلمان بھی ظلم کرے گا نا تو وہ قیامت کے دن پھنسے گا کہ اس کے پاس اگر نیکیاں ہیں تو وہ مظلوم کو دی جائیں گی جس پر اس نے ظلم کیا، تو ظاہر نیکیاں ہوتی ہی مسلمانوں کے پاس ہے۔ کافر کی جو نیکیاں ہوتی بھی ہیں تو ان کو دنیا ہی میں اس کا بدلہ مل جاتا ہے، آخرت میں ان کی نیکی اس کو فائدہ نہیں کرے گی۔ تو یہ کہ ان کو جو مسلمان ہیں تو ان کو نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اب نیکیوں سے بھی کام نہیں چلے گا، اور ظلم باقی ہیں، تو ان مظلوموں کے گناہ ان ظالموں کے متھے تھوپ دیے جائیں گے، چاہے وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں، کیسے بھی یعنی کہ خیراتیں کی ہوں، حج کیے ہوں، یہ ساری نیکیاں چلی جائیں گی جن پر ظلم کیا ان کے اس میں، اور ان کے گناہ ان پر مسلط کیے جائیں گے۔ یہ صورتیں ہیں اس طرح کی، اور پھر یہ سب کے گناہ اٹھا کر ان کے جہنم میں اس کو جھونک دیا جائے گا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جہنم میں لے جانے والا اعمال، بڑی قیمتی، بڑی اہم اور نیک بنانے والی کتاب، خدا کا خوف دلانے والی کتاب ہے۔ یہ تو ہر گھر میں ہونی اور ہونی ہی چاہیے۔ اس کے صفحہ 580 پر ہے، یہ جلد اول ہے جو میرے ہاتھ میں تھی۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हम में मुफलिस वो कहलाता है जिसके पास ना दिरहम हो ना कोई माल। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में मुफलिस वो है जो क़ियामत के दिन नमाज, ज़कात और रोजे लेकर हाजिर होगा और उसने इसको गाली दी होगी और इसका माल छीना होगा, तो ये उसकी नेकियों में से कुछ नेकियां ले लेगा, इसी तरह वो भी इसकी नेकियां ले लेगा। अगर पूरा हक अदा करने से पहले उसकी नेकियां खत्म हो गई तो ये शख्स उन लोगों के गुनाह अपने सर ले लेगा, फिर इसे औंधे मुंह जहन्नम में गिराया जाएगा। तो ये गाली और माल छीनने की यह मिसाल है। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो गाली दे उसी के वही जालिम है, या माल छीने सिर्फ वही जालिम है, बल्कि कत्ल करने वाला भी कोई छोटा जालिम नहीं है। तो ये जुल्म का बहरहाल जिन्होंने जुल्म किया उनका अंजाम बहुत बुरा है। अच्छा, ये ऊंधे मुंह जहन्नम में गिरा दिया जाएगा, ये सुन कर हम तो सुनते हैं निकाल देते हैं। आप गौर करें कि ऊंधे मुंह गिरना और सीधे गिरना कितना फ़र्क है। यूँ समझिए चबूतरे से, जो समझिए कि वो 3-4 फुट ऊंचा और किसी ने इसको फेंका तो वो कोई चोट खास आएगी नहीं, जबकि यूं पकड़ के छोड़ दिया, और किसी को टांगों से पकड़ा और सर के बल छोड़ दिया, ये 4-5 फुट ऊंचे से यूं छोड़ा, तो फिर क्या होगा? खोपड़ी फटेगी नहीं फटेगी? ये तो मैंने आपको समझाने के इसका। तो अच्छा, तो ये औंधे मुंह जहन्नम में गिरा दिया जाएगा। तो ये जहन्नम में जो चलेंगे ना, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि मुंह के बल घसीटा जाएगा। ये कोई खाला जी का घर नहीं है। हाँ, एक तो है ना वो वैसे खींचते हैं आदमी को, और एक है कि मुंह जमीन पर हो और मुंह ये रगड़ खा रहा और यूं घसीटा जा रहा हो, नाक, आँख, केस, दांत और सब, ये चेहरा जो है ये चूर चूर हो जाएगा, है ना। ये ना कि जा रहे किसी को अगर हम इस तरह घसीटेंगे, वहाँ क्या कैफियत होगी खुदा बेहतर जाने चेहरे की, लेकिन ये कि मुंह के बल घसीट कर कुफ्फार को जहन्नम में झोंका जाएगा। अल-अमान वल हफीज, हम ईमान की सलामती के तलबगार हैं। मेरे पास इस वक्त गिबत की तबाहकारियाँ, ये दाऊद इस्लामी की दरसी किताब है, इसमें मसाजिद में दर्स दिया जाता है। इससे फैज़ान सुन्नत जिल्द दुव्वम का एक बाब है ये, इसके सफ़हा नंबर 104 पर लिखा है, दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना का मतबूआ रिसाला ज़ुल्म का अंजाम सफ़हा नंबर 21 पर है। हज़रत सैयदना यजीद बिन शाहजारा रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, जिस तरह समुंदर के किनारे होते हैं इसी तरह जहन्नम के भी किनारे हैं, जिनमें बुख्ती ऊँटों जैसे सांप और खच्चरों जैसे बिच्छू रहते हैं। अहले जहन्नम जब अजाब में कमी के लिए फरियाद करेंगे तो हुक्म होगा किनारों से बाहर निकलो। वो जो ही निकलेंगे तो वो सांप इन्हें होंठों और चेहरों से पकड़ लेंगे और उनकी खाल तक उधेड़ लेंगे। वो लोग वहां से बचने के लिए आग की तरफ भागेंगे, फिर उन पर खुजली मुसल्लत कर दी जाएगी। वो इस कदर खुजाएंगे कि उनका गोश्त पोस्त सब झड़ जाएगा और सिर्फ हड्डियां रह जाएंगी। पुकार पड़ेगी, ऐ फुला, क्या तुझे तकलीफ हो रही है? वो कहेगा हाँ। तो कहा जाएगा ये उस ईज़ा का बदला है जो तू मोमिनों को दिया करता था। अलमान अलमान। तो ऐ जुल्म इस्तिबदाद का बाजार गर्म करने वालों, बेगुनाहों को जेलों के अंदर ठूंसने वालों, बेगुनाहों पर मुकदमा दायर करने वालों, बेगुनाहों को पकड़कर लाकअप के अंदर बंद करने या बंद करवाने वालों, या रिश्वतें लेकर ए इंतज़ामिया वालों जो मजलूमों की पिटाइयाँ करते हो, मारते हो, गलत केस बनाते हो, अभी सब कुछ कर सकते हो। अभी तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारे पास असलहा है, तुम्हारे पास गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ पावर है, लेकिन याद रखो नसीम सुबह गुलशन में गुलों से खेलती होगी, किसी की आखिरी हिचकी किसी की दिल लगी होगी। कभी तुम्हारी आखिरी हिचकी होगी, तुम्हारी सांस उखड़ रही होगी, बिलाखिर रूह कब्ज हो जाएगी। ना तुम्हें गवर्नमेंट बचा सकेगी, ना कोई वजीर शरीर जो तुम्हारी सरपरस्ती कर रहा होगा तो वो बचा सकेगा।
ना तुम्हारा असलहात में बचा सकेगा, ना तुम्हारा डेल डोल का जिस्म, ना तुम्हारी सवा गज की ज़बान जो गाली पहले देती थी बात में करती थी, वो तुम्हारे काम आएगी। हमारी रूह खींच कर निकाल ली जाएगी और कब्र में तुम्हें धबेड़ दिया जाएगा। भलाई के वास्ते हमेशा भलाई के वास्ते उठे, बचाना जुल्म सितम से मुझे सदा या रब, बचाना जुल्म सितम से मुझे सदा या रब। आमीन। तो अल्लाह ताला हम सबको जुल्मों सितमों से महफूज रखे। जो जुल्म करते हैं अल्लाह उनको तौबा नसीब करे। सिर्फ तौबा अकेले में बैठकर कर लेना जालिम के लिए काफ़ी नहीं है। जिन जिन पर जुल्म किया है उनसे भी माफ़ी मांगे, उनको राज़ी करे। माल छीना है तो उनको अदा करे, वरना उससे माफ़ करवाए या मोहलत ले ले, किसी तरह भी वो तरकीब ऐसी बनाए कि वो राज़ी हो जाए मजलूम जिन पर जुल्म किया है। वरना फिर आज तो किसी को झाड़ दिया, डांट दिया, धमकी दे दी, धक्का मार दिया, चिट्ठी भेजकर रकम तलब कर ली, बेचारे की नींद उड़ा दी, ख़ानदान भर को टेंशन में डाल दिया, किसी को अगवा कर लिया तावान के लिए। लेकिन मौत को दूर मत समझिए। अब आई क्या भाई, जो सुबह जिंदा होता है वो शाम को मुर्दा होता है, जो शाम को जिंदा होता है रात को बिस्तर पे मुर्दा मिलता है। इस तरह के जालिमों की मेरी तो उम्र निकल गई। देखें जालिम देखें जिनके नाम से लोग लरसते थे, इन लोगों के अंजाम देखे मैंने। जवानी में मरते हैं, बेदर्दी से मरते हैं, आखिर बाज़ औक़ात मज़लूम जो है उनको घोंप देते हैं, मार के फेंक देते हैं। बाज़ औक़ात मज़लूमों की मतलब घूम जाती है, वो जान पे खेल जाते हैं। वैसे यार ये मार देगा कहीं तो इसी को अपने ना बेच दें पहले से। तो मैंने देखे हैं, सुने हैं, बात दादागिर देखे हैं मैंने, शोहदे देखे हैं, लुच्चे देखे हैं जिनसे कोई लड़ नहीं सकता था, जिनसे कोई ऊंची आवाज़ से बात नहीं कर सकता था, उनके अंजाम देखे। ये सब तकरीबन मैंने देखा है जवानी में मरते हैं और कुत्ते की मौत मरते हैं, इबरतनाक मौत मरते हैं, कोई ठुकने वाला नहीं होता इन पर। तो बाज आ जाओ, दुनिया में भी जिल्लत, आखिरत की जिल्लत, कब्र की जिल्लत, रसवाई, जहन्नम का शदीद अज़ाब, अल्लाह ना करे हो गया तो क्या करोगे। आ जाओ, मान जाओ, भले ठीक है लोग मारेंगे ना, मार खा लेना। अरे कमज़ोरों को सब दबाते हैं, हमें कमज़ोर बनकर दुनिया में जी नहीं सकते हम। शरीफ आदमी का कोई क्लास नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या उलमा भी दादागिरियाँ करते हैं, मारते हैं किसी को? क्या मस्जिदों के इमाम क्या वो गरीबान पकड़ के घोंसे चढ़ाते? दावत इस्लामी के मुबल्लिग इनके गरीबान पकड़ के टक्कर मार के नक्सीर फोड़ देते हैं क्या? फायरिंग करते हैं क्या? ये लाखों करोड़ों मुसलमान के शरीफ नहीं है जो जी रहे हैं इस दुनिया में? ऐसी कोई बात थोड़ी यार। अल्हम्दुलिल्लाह जी रहे ना, शरीफों की दुनिया है, जी रहे। बल्कि बदमाशों की अगर यूं गिनती, अगर कोई सर्वे किया जाए तो बदमाशों की तादाद बहुत कम निकलेगी। यूं उर्फी शुरफा जो है कि जो मतलब यानी फायरिंग नहीं करते या मार धाड़ और तोड़ फोड़ नहीं मचाते, इनकी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में आपको मुसलमानों में गालिब अक्सरियत इन्हीं की मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए आप भी इन्हीं में शामिल हो जाएं। मेरा मशवरा दावत इस्लामी में आ जाओ, इंशाअल्लाह सारे मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जुल्म से भी तौबा हो जाएगी, मजलूम भी इंशाअल्लाह राजी हो जाएंगे, कोई ऐसी सूरतें बन जाएंगी इंशाअल्लाह। आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, मेरी दावत इस्लामी में आ जाओ। मेरी दावत इस्लामी तुम्हें आका के कदमों तक पहुंचा देगी इंशाअल्लाह। जुल्म के खिलाफ जंग जारी रहेगी, जुल्म के खिलाफ जंग जारी रहेगी, जुल्म के खिलाफ जंग, गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे। इंशाअल्लाह।
मोहब्बतों के चोर चुगल खोर कुफल मदीन लगा रहेगा इंशाअल्लाह, अज़्ज़ा व जल्ला, सर पे इमामा सजा रहेगा इंशाअल्लाह, अज़्ज़ा व जल्ला, सर पर जुल्फे सजी रहेंगी इंशाअल्लाह, अज़्ज़ा व जल्ला, रुख पे दारी सजी रहेगी इंशाअल्लाह, अज़्ज़ा व जल्ला, सर पर जुल्फे सजी रहेगी इंशाअल्लाह, अज़्ज़ा व जल्ला, शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अज़्ज़ा। अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। जिस मोहब्बत भरे दर्द भरे अंदाज से इस वक्त आप मदनी फूल अता फरमा रहे हैं, जिस तरह इस्लामी भाइयों को समझा रहे हैं, तो लेकिन बाबा बहुत सी चीज़ें रुकावट बनती हैं। इतना कुछ कर चुके होते हैं, इतना आगे बढ़ चुके होते हैं, पीछे हटने की बाजार को सूरत ऐसे बज़ाहिर को सूरत नज़र नहीं आती, अंधेरा अंधेरा नज़र आता है। ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? तो मजीद जुल्म करे इसकी इजाजत तो ज़ाहिर न मैं दे सकता हूँ, मेरे देने से मिल नहीं सकती। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की हमारे सामने मिसालें मौजूद है। हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलवार लेकर घूमते ही थे ना कि मैं सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह शहीद कर दूं, लेकिन गुलामों की फहरिस्त में आई गई ना, और आए भी कैसे कि वो सहाबा किराम में दूसरे नंबर पर आ गए, बल्कि वो नबियों के बाद अंबिया और मुरसलीन के बाद इंसानों में दूसरे नंबर पर आ गए फजीलत के एतबार से। इतनी बड़ी शान के मालिक हो गए। तो अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुझे पता है पुलिस लगी रहती है कि अभी ज़रा भी इनका भत्ता बंद किया, सब पुलिस वाले से नहीं होते, लेकिन ऐसे भी होते हैं। तो अगर ऐसों के हत्थे चढ़ा हुआ है तो वो उसका थाने में उसका भत्ता जाएगा। तरकीबें होती हैं इन लोगों की, सरपरस्तियाँ होती है बदमाशों की, वरना ये क्या डकैतियाँ हो यार, इलाकों में डकैतियाँ, मजाले कोई डकैती हो जाए इलाके में, सब पता होता है बिल्कुल, यानी कि हिस्से बंधे हुए होते हैं। अफसोस, सद अफसोस, 7 करोड़ अफसोस। तो ये मतलब ये सब इसको मतलब जाहिर है कि वो अब इसकी जान को आ जाएंगे, ये ख़तरात हैं, लेकिन बाज़ औक़ात असबाब हो जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि जिन दिनों में हिंद के मदनी काफ़िले में था, तो एक नौजवान को इस्लामी भाई ले आए, उसने मेरा इस तरह तारुफ करवाया गई है, इसने कफन चोरों के इंकिशाफात, इसको रिसाला तोहफे में मिला हिंदी में। अब ये था अनपढ़ और था वही लुटेरा था। ये वो गुजराती में इसको चील झड़प बोलते हैं हमारे यहाँ, यानी गुजराती में चील झड़प बोलते हैं। यानी इसकी कोई टीम वगैरह थी और तरकीब थी इन लोगों की कि ये बाजार में औरतों के पर्स वो बड़ी सफाई से वो छीन के वो उड़ जाते थे, भाग जाते थे। इस तरह का उसका वो कुछ तरकीबें थी। लड़का ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो मेरा ख्याल है कोई 20 साल का होगा, ऐसे ही हुआ मेरा ख्याल है। तो इसको ये रिसाला दिया, ये तो था भी अनपढ़ था, तो इसने अपनी माँ को बोला कि माँ ये क्या मतलब, ये मेरे को दिया है किसी ने, पढ़ के तो सुना। अब माँ हिंदी जानती थी, पढ़ना उर्दू तो कम है ना वहाँ, तो उसने पढ़ के सुनाया, पढ़कर सुनाया तो ये तो चोट खा गया। है यूं भी होता है, कब्र में ऐसे ऐसे अदाब होते हैं गुनाह करने वालों के। तो इसने दुकान पकड़े। इस्लामी भाइयों ने मजीद इनफरादी कोशिश की, ये कफन चोरों के इंकिशाफात ये रिसाला मकतबतुल मदीना का ही, तो इस पर कोशिश मजीद इनफरादी की, तो इसको काफिले में सफ़र भी करवा दिया। ये तो काफ़ी लेवल पे आ गया इसका मामला। अब वो इसके केस तो बने हुए थे। ये बस उन्हीं दिनों जिन दिनों में वहाँ था, ये इज्तिमा में आया, हफ्तावार इज्तिमा में, वो पुलिस इसको ढूंढ रही थी, इसका पता नहीं भत्ता बंद हो गया था क्या था, इसको ले गए, पकड़ लिया। वो इज्तिमा में देख लिया तो पकड़ लिया, अब ले गए। तो एक बेचारे मोहब्बत वाले थे इस्लामी भाई, उसको छुड़ा दिया था उसने। तो यूँ एक मतलब सबब कभी हो भी जाता है इस तरह, वो असबाब बन जाते हैं, और खुदा न खाता नहीं भी बनते असबाब, और पकड़ लेकर पुलिस क्या करेगी, जान देगी ना, ईमान तो नहीं लेगी। अब ये कि कब्र की तकलीफ़ों को या तो ओके करे, क़यामत की तकलीफ़ों पर ओके करे, जहन्नम के अज़ाब पर हाथ रखे, या दुनिया की इस तकलीफ पर हाथ रखे,
माअज़ल्लाह जहन्नम के अजाब पर तो हाथ रख ही नहीं सकता ना, वो तो सवाल ही नहीं, तो बर्दाश्त होना ही नहीं उसने। तो दुनिया की तकलीफ भी वाकई बहुत तकलीफ होती है, नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफें होती है, लेकिन खुदा की कसम जहन्नम की तकलीफ के मुकाबले में दुनिया की तकलीफ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो अब ये दो तकलीफें सामने हैं, और सबसे बड़ी तकलीफ है अल्लाह की नाराज़ी और नाराज़ी, ये सबसे बड़ी तकलीफ है। तो अब अल्लाह की रज़ा किस में है? यकीनन तौबा में। अल्लाह ताला को तौबा करने वाला पसंद है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, कुरान पाक में कि बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। तो अब ये कि अल्लाह ताला की मोहब्बत पर हाथ रखे या अपनी इन मजबूरियों को का रोना रोए, हैं तो मजबूरियां मैं भी समझता हूँ कि वो खुद करदारा इलाज है नेस्त, अपने हाथों का किया उसका इलाज मुश्किल है, जो ये किया इसका अब या दुनिया में चुका है या आखिरत के लिए तैयारी करे चुकाने की, आखिरत में चुका नहीं सकेगा। तो इसलिए दुनिया में मतलब इस तरह की तरकीब करे, कोई सोर्सें ढूंढे और तौबा तो कर ही ले, और अपने जुल्म से बाज भी आ जाए जो भी काम दे, और अब कोई सोर्सें लड़ाए, शायद इसी तरकीबें बन जाती हैं, असबाब हो जाते हैं वाज़ नियत सच्ची हो तो वो सच्ची मंजिल नियत आसान हो साफ जाती है। मंजिल आसान। और आप जिस मोहब्बत के साथ हाथ बढ़ा रहे हो ना, अगर अल्लाह ताला के करम से इन्होंने हाथ बढ़ा दिया आपकी तरफ और मिला लिया, और जिस तरह आप इसको खींच रहे हो इनको, ये हिम्मत करके हाथ दे देना, अल्लाह ने चाहा तो ये बाबा निकल आएंगे इंशाअल्लाह। कई ऐसे हमारे पास हैं, ऐसा नहीं है, एक से एक छठे हुए बदमाश, डाकू, चोर, लफंगे, लुच्चे, तरह तरह के मार धाड़ वाले, मगर अब वो मुबल्लिग बन गए, इमामें बांध लिए, दाढ़ियां सजा ली। अब कोई ये नहीं कह सकता कि ये इसका पिछला दौर ये था, माजी इसका ऐसा। ये आए दिन अब मदनी चैनल पर नहीं सुनते यार, मैं दावत इस्लाम में कैसे आया, इसमें एक से एक छठे हुए आते हैं, अपने वो ऐसे अंदाज बताते हैं पिछले, अपने को लगता है कि यार ये पता नहीं सच भी बोल रहा है कि नहीं यार, ये हिस्सा मतलब पुरानी है नहीं कि इसकी ज़िंदगी ऐसी थी, और ये ऐसा जुल्फ़े भी हैं, तो दाढ़ी भी है, और नीची निगाह रह कर वो तासुरात अपने मूवी वो तासुरात रिकॉर्ड करवा रहा है, ये हिस्सा था यार पहले। अपने को ताज्जुब होता है, सब मार धाड़ी है अपने पास है कि पूरा मोहल्ला उनका ख़ानदान उनसे तंग होता था, थाना उनसे बेजार होता था। ऐसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह दावत में आकर सुधरते हैं। तो ये कि आप मायूस ना हो अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, और आप आ जाओ दावत में, आप सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ। जिनके हुकूक आपने तलफ किए हैं उनको ढूंढ कर टेलीफोन करके किसी तरह उनसे मुआफ़ी तलाफ़ी की सूरतें निकालो। इसकी सूरतें हैं, मुआफ़ियों की सूरतें हैं, नहीं है ऐसा नहीं। आप किसी मुबल्लिग से ज़िम्मेदार साहिब से मशवरा कर लो कि यार मैं तौबा तो कर लिया, अब मैं ये हुकूकुल इबाद की कैसे तरकीब बनाऊँ, वो इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, और अल्लाह करेगा तो आप बचोगे। ऐसे पुलिस अफसरान भी आपको मिल जाएंगे अल्लाह करेगा तो, मदनी माहौल से मोहब्बत करने वाले एक से एक अपर लेवल के अफसरान अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी से मोहब्बत करते हैं, ऐसा नहीं है। वो लोग आपको यार रास्ता दिखाएंगे, इनसे अगर आपकी कोई सोर्स हो गई, तरकीब होगी, वो आपके केस भी ख़त्म करवा देंगे। अगर आप सच्चे होंगे, देखो सांच को आँच नहीं है, वरना नीयत में खतरा, झोली में पत्थरा। आप आ जाओ, आप अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ, इंशाअल्लाह वो सब कुछ बेहतर कर देगा। अगर दुनिया में तकलीफ आती भी है बिलफर्ज, तो यूं समझो कि चलो आखिरत की तकलीफ से अगर जान छूटती हो, और ये तकलीफ तो ये सस्ता सौदा है, ये दुनिया की सजा बड़ी सजा नहीं, इसका बहुत जल्दी एंड है। आखिरत की सजा बहुत खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। अब मिसाल के तौर पर अगर दुनिया की सजा किसी को गुनाह की ये मिले, आपने कभी झूठ बोल दिया था जिसमें हक़ुल अब्द तलफ नहीं हुआ था, ठीक है, अब झूठ बोल दिया, उसकी सज़ा ये मिली कि आपको शिद्दत से पेट में दर्द हुआ और आप ये तड़प रहे, और इसके बदले आपकी वो झूठ की आखिरत की सज़ा माफ़ कर दी गई। खुदा की कसम बहुत सस्ता सौदा है, भले आपको बहुत तकलीफ है, लेकिन जो अजाब जो है ना, इसमें यूं मैं आपको समझाने के लिए बोलूँगा कि जो अजाब है ना, यूं समझ लो कि उसमें पेट का दर्द भी शामिल है, उसमें ज़ख्म की जलनें भी शामिल हैं, उसमें खारिशें भी शामिल हैं, उसमें सांप के डसने, बिच्छू के डंक मारने भी शामिल हैं, उसमें आग के जलाने भी शामिल हैं, उसमें हथौड़े मारने,
जंजीरें मारने, घसीटने, फेंकने, पटकने, ये हजार तकलीफें जिसको मैं एक मिसाल देकर ये सारी खाली समझाने के लिए, वरना हकीकत तो इसकी बयान हम कर ही नहीं सकते कि वो क्या क्या तकलीफ। कैंसर भी उसमें है, टीबी की तकलीफ भी उसमें है, काली खांसी भी उसमें है, तो वो बलगम वाली खांसी भी है, तो खुश्क खांसी भी उसमें है, तो नज़ला भी उसमें है, तो दर्द सर भी उसमें है, तो जोड़ों के दर्द भी उसमें है, तो वो खौफनाक बुखार भी उसमें है समझ लो, तो कमर का दर्द भी, सबसे खतरनाक दर्द भी उसमें शामिल है। कोई ऐसी दुनिया की तकलीफ नहीं है कि जो उस अजाब में शामिल नहीं है। ये मैं आपको समझाने के अर्ज कर रहा हूँ, वरना खुदा की कसम दुनिया की सारी तकलीफों जिसमें कैंसर और दुनिया जहान के मरज, ऑपरेशन की तकलीफें और ये सब, मतलब यानी किसी को वो कूट कूट के उसका कीमा कर देना, वो सारी तकलीफें भी एक पलड़े में रख दें और जहन्नम के अजाब कि एक लम्हे का करोड़वां हिस्सा तराजू के दूसरे पलड़े में रख दें, खुदा की कसम वो एक लम्हे का करोड़वें हिस्से की जो तकलीफ है ना, इन सारी तकलीफों पर हावी हो जाएगी। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको कहा, इतनी तकलीफें। तो अगर झूठ बोलने की वजह से सिर्फ पेट का दर्द हो गया, बहुत सस्ता सौदा है यार। खाली बुखार आ गया, खुदा की कसम साहब मुफ्त है यार, मुफ्त। अगर इसकी वजह से ये गुनाह माफ होने की गारंटी मिल जाती है तो क्या बात है, बहुत सस्ते सौदे यार। ये दुनिया की तकलीफें नहीं है इतनी खतरनाक जितनी आखिरत की तकलीफ है। हम आफियत के तलबगार हैं कि या अल्लाह हमें न दुनिया में तकलीफ हो न आखिरत में तकलीफ हो। मैं तकलीफों का रब से सवाल नहीं कर रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं खुद कमज़ोर, मुझे पता है कि एक नजरा भी होता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तो मैं आपको क्यों कहूँ कि पेट में दर्द है, कोई बदुआ थोड़ी दे रहा हूँ। मैं आपको समझा रहा हूँ कि कभी अगर ऐसा हो जाए तो दिल को मना ले। एक बार वो एक मरीज जो था वो कड़वी दवा का उसने बहुत बड़ा यानी कि समझो कटोरा भरा, वो कड़वी भी ऐसी कि वो कड़वाहट भी उससे शर्मा जाए, वो कड़वी दवा, और उसका रंग ऐसा खूबसूरत सब्ज सब्ज, वो ठंडी बोतल जैसे वो डाली हुई है। अपने किस्ताई भाई को उसने बताई दोस्त को कि ये पियोगे तो सारे को, तो नहीं मेरे को हाजत नहीं है, उसने इस तरह का कुछ जवाब दिया। तो उसने कहा कि ये बाजार तो शरबत ना, वो बेहतरीन शरबत लग रहा है, लेकिन ये शरबत है नहीं, ये इंतहाई कड़वी दवा है और इसको पीने से माए हमीम याद आ जाए। यानी जहन्नम की जो जहन्नम का मशरूब है ना, वो इतना खतरनाक होगा, इतना खतरनाक होगा न। जहन्नम का समझो कि शरबत या पानी, उसमें भलाई है भी नहीं ना, तो वो तो बहुत खतरनाक है, अजाब है वो। तो वो जहन्नम में जो पानी दिया जाएगा खोलता हुआ पानी, माए हमीम बाजों के नज़दीक वो जहन्नमियों का निकला हुआ खून और पीप। तो ये बहरहाल ये कि इस तरह का पानी है समझो खोलता हुआ वो जहन्नमियों को पीने के लिए दिया जाएगा। तो जब वो मुंह के करीब करेंगे इतना गर्म होगा, इतना गर्म होगा, इतना गर्म होगा, दुनिया में ऐसा गर्म तसव्वुर नहीं किया जा सकता। वो इतना गर्म होगा कि जैसे मुंह के करीब आ गया ना, तो ये मुंह की सारी खाल जो है ना, ये सब झड़ के उस प्याले में पानी के अंदर गिर जाएगी। मगर अब ये इसको पीना पड़ेगा, ये अजाब है इसका, इसको ये पिएगा, इसको मजबूर होगा, ये पिएगा। ये पिएगा तो जैसे ही ये पेट में जाएगा ना, तो इसकी आंतें काट काट के वो दोनों टांगों के दरमियान से पिछले रास्ते से बाहर खारिज हो जाएंगी और मौत भी नहीं आएगी। हाय हाय हाय, यहाँ तो तसव्वुर नहीं है जीने का कि इस तरह आंतें कट के पीछे के रास्ते निकल तो आदमी जिंदा रह ही नहीं सकता, वहाँ मौत नहीं आएगी जहन्नम में। तो ये मैंने कहा ये वो उसने कहा कि ये जो दवा है तो ये इतनी मतलब ये खूबसूरत जो है, ये इतना कड़वा है और माए हमीम की याद दिला दे। तो वो खौफे खुदा वाला था उसका दोस्त, उसने कहा अच्छा यार फिर तो मेरे को पिलाओ यार ये। तो आखिर उसने भी थोड़ा सा पिया उसमें से, हालांकि उसको इसकी हाजत नहीं थी। वो बोला नहीं यार ये माए हमीम की याद है, वह खौफ खुदा का इसमें तसव्वुर बांध सकता है, तो चलो यार मैं भी कुछ बांध लेता हूँ। तो ये मैं आपको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि ऐसा करना भी मुमकिन है।
کہ یعنی کہ یہ دنیا کے ہاں تو اب یہ دوا جیسے اور جو بھی مرض ہو اس کا، تو یہ مرض اور یہ دوا خدا کی قسم بہت آسان ہے. مائے حمیم کتنا خطرناک ہے. اب کڑوا ہوا تو تھوڑا موڈ خراب ہوگا، تھوڑا یوں کرے گا بندہ، اور کیا کرے گا؟ پینے کے بعد میٹھی چیز منہ میں ڈال دے گا تو اس کا کڑواہٹ زائل ہو جائے گی، اور کیا ہوگا؟ 2-4 گھنٹے منہ کڑوا رہے گا، بہت بہت تو یہ ہوگا، اور کیا ہوگا؟ وہ منہ کی کھال تو اس میں نہیں گر رہی، آنتیں تو کٹ کے پیچھے سے نہیں بہ رہی، اندر کے کل جتنا بھی آلات جو اندر کا جو ہے نا حساب کتاب، پھیپھڑے اور کلیجیاں اور یہ تو نہیں کٹ رہی نا. تو یہ مطلب سب سمجھنے کی بات ہے. ہر چیز میں مطلب اپنے کو کوشش کرنی چاہیے کہ آخرت کا تصور نکال لیا جائے. اس طرح کڑوی دوائیں اور اس طرح کے آپریشن کی نوبت آئی تو، انجیکشنوں کی نوبت آئی تو، کوئی تکلیفیں بیماریاں آئیں تو اس طرح اس میں صبر آسان ہو جائے گا. آخرت کی تکلیفوں کو یاد کرے گا نا بندہ، ثواب بھی ملے گا اور صبر بھی آسان ہوگا. اللہ نصیب کرے. جب بھوک بہت لگی تو قیامت کی بھوک یاد کرے گا، وہاں تو بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی، کوئی کھانا نہیں دے گا. اور یہاں تو ابھی کھانا تیار ہے، تھوڑی دیر کے بعد مل جائے گا، مل تو جاتا ہی. بھوک سے مرتا تو نہیں عام طور پہ یہاں، ایسا تو شاید مشکل ہی ہو، بھلے فاقہ ہو جاتا لیکن کوئی نہ کوئی کھلا ہی دیتا. آدمی کسی سے مانگ لیتا ہے، دے دیتا ہے، کوئی رحم کھا کے ترکیب بن جاتی ہے. کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں کھا لیتا ہے جو بھلے عادت میں نہیں ہے اس کی غذا، لیکن پھینکی پھینکائی کچھ نہ کچھ مل جاتی چیزیں، آدمی اپنی بھوک مٹا سکتا ہے. یہاں وہاں قیامت میں کیسے بھوک مٹے گی؟ وہ 2-4 منٹ 2-4 گھنٹوں کی بھوک نہیں ہوگی. وہ ہاں تصور نہیں ہے. اور جن پر کرم ہو جائے، جن پر کرم ہوگا اس کی بھی عجیب شانیں ہوں گی. بعضوں کے نزدیک قیامت کا جو میدان ہے نا وہ روٹی ہوگا. میدان قیامت جو روٹی کا بنا ہوا ہوگا، اور جن پر کرم ہوگا اللہ تعالیٰ کا وہ اسی کو توڑ توڑ کے روٹی سے بھوک مٹا لیں گے قیامت میں. یہ بھی ہوگا کھا کے، جس پر کرم ہو جائے. اللہ کرے ہم پر بھی کرم ہو جائے. اے کاش مصطفیٰ کے ہاتھوں ہمیں جام کوثر نصیب ہو جائے. کاش کاش کاش. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. گناہگار طلبگار و رحمت ہے. گناہگار طلبگار و رحمت ہے. عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب. عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب. ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائے. آمین. ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائے. ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب. رہے بلائی کی راہوں میں گامزن ہر دم. آمین. اللہم رہے بلائی کی راہوں میں گامزن ہر دم.
رخ میرے پاؤں گناہ کا یا رب کرے نہ رخ میرے پاؤں گناہ کا یا رب گناہ پہ عدد اور جرم بھی لا تعداد کرب سہا نہ سکوں کا کوئی سزا یا رب میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں حقیقی توبہ کا کرتے شرف یا رب کہیں کا گناہوں نے اب نہیں چھوڑا کہیں کا گناہوں نے اب نہیں چھوڑا کہیں کا نہیں چھوڑا عذاب نار سے تار کو بچا یا رب عذاب نار سے بدکار کو بچا یا رب آمین اللہم آمین. بابا جی ابھی آپ نے وہ ظلم وغیرہ کے حوالے سے کچھ جو مدنی پھول عطا فرمائے، وہ ایک SMS آیا ہے کہ جیسے کہ ایک شخص سے میں معافی مانگنے جا رہا ہوں، اب میں اسے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ بھائی خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، لیکن وہ شخص ہے کہ مجھے معاف کرتا ہی نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ کر رہا ہوں کہ معافی مانگنے کے لیے ایک مطلب عمومی ایک حدیث موجود ہے، یہ حدیث پاک ہے جس کو سب سے پہلے میں نے انوار البشارہ میں پڑھا تھا اعلیٰ حضرت کے رسالے میں، اس کے بعد فتح رضویہ شریف میں بھی پڑھا ہے، اس کے علاوہ یہ احوال آخرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں بھی پڑھا ہے. وہ مضمون یہ ہے کہ جب تیرا بھائی تیرے پاس معافی لائے نہ تو اسے معافی مانگے تو اسے معاف کر دے، ورنہ حوض کوثر پر آنا نہیں ملے گا. انہیں کوئی معافی مانگتا ہے تو اس کو معاف کر دو، ورنہ حوض کوثر پر نہیں آنے دیا جائے گا قیامت کے روز. تو یہ ہے خطرناک معاملہ، تشویشناک ہے نا، وعید ہے یہ، تو اس لیے معاف کر دینا چاہیے. اب اگر اس کا دوسرا رخ میں دیکھیں تو بعض اوقات سامنے والے کو اس قدر چوٹ لگی ہوئی ہوتی ہے، اتنا وہ ستایا ہوا ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ وہ مطلب کہ وہ کسی صورت اپنے گئے گویا جو سمجھے اس کا نفس یا اس کا دل اس کے قابو میں نہیں آ رہا ہوتا کہ میں اس کو معاف کر دوں. اب اس میں کیا مطلب کہ وہ ہمت کر جائے نا؟ معاف کر دینا چاہیے. معاف کر دینے کی بہت فضیلت ہے. وہ غیبت کی تباہ کاریاں میرے ہاتھ میں اس وقت کہ صفحہ نمبر 111 پر لکھا ہے، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوع 32 صفحات پر مشتمل رسالے غصے کا علاج صفحہ 32 پر ہے. قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا جس کا اجر اللہ عز و جل
के जिम्मे करम पर है वो उठे और जन्नत में दाखिल हो जाए। पूछा जाएगा किसके लिए अज्र है, वो कहेगा उन लोगों के लिए जो मुआफ करने वाले हैं। तो हजारों आदमी खड़े होंगे और बिला हिसाब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। कितनी बड़ी करम की बात है। तो माफ कर दो, मेरे जिसने जितने हुकूक पामाल किए, मेरे पैसे खा गए, मुझे मारा पीटा, जान लेने की कोशिशें की, मुझे धमकियां दी, मैं सबको माफ करता हूं। मेरे से आम माफी का ऐलान है, मैंने सबको माफ किया। आप भी माफ कर दो, हिम्मत रखें और सबको माफ कर दें और मुझे भी माफ कर दें। मेरी तरफ से अगर किसी मुसलमान को तकलीफ हो गई हो, मेरे नाज़रीन का कोई हक तलफ कर दिया हो, तो मुझे वो भी माफ फरमा दे। सब अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दे, कह दिए माफ किया, जज़ाकुमुल्लाह। मैंने तो अपने कातिल को भी अपना हक मुआफ किया हुआ है। अगर कोई बिल फर्ज मेरे मुकद्दर में शहादत है तो मुझे जो शहादत का जाम पिला देगा, तो मैंने अपना हक, क्योंकि उसमें हुकूक 3 है, हक़ुल्ला वो मैं माफ़ नहीं कर सकता, अल्लाह का हक है कि अल्लाह ने मना किया है, उसकी नाफरमानी कत्ल में। वरसा का हक, वारिसों का, वो भी मैं माफ़ नहीं कर सकता, ज़ाहिर है, उनको दरख्वास्त है कि वो माफ़ कर दे। अपना हक वो मैंने एडवांस में माफ़ कर दिया है। अल्लाह ताला मुझ गुनाहगार को भी माफ़ फरमा दे। जज़ाकल्लाह। तो ये रिसाला एक छोटा सा अफ़्व दरगुज़र के फ़ज़ाइल, ये मकतबतुल मदीना ने शाया किया है। अफ़्व दरगुज़र के फ़ज़ाइल बहुत ही मालूमाती और बेहतरीन रिसाला है। जो माफ़ नहीं करता उसका जहन नहीं बनता, इसको पढ़ लेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसका जहन बन जाएगा, माफ़ कर देगा। और आपको भी कोई तकलीफ होगी तो आपका भी माफ़ करने का जहन बन जाएगा कि इतनी फजीलत पर हाथ रखेंगे यार, अपना खाली कुड़ते रहें, बदला तो ले नहीं सकते अपने, उससे क्या बिगाड़ लेंगे, अगले को माफ़ नहीं करेंगे तो। अब किसी ने वो तेज़ नज़र से घूरा, अपने को तकलीफ पहुंची, अब अपने क्या उसको ठोसा मारेंगे? अब हमने उसकी यानी कि गलती से ज़्यादा बदला ले लिया तो फिर हम जालिम हो जाएंगे। तो हम यार माफ़ी कर देना, तो वो बेहिसाब जन्नत में दाखिले की बिशारत जो है ना। तो बड़े फ़ज़ाइल है माफ़ करने के। तो इन फ़ज़ाइल पर नज़र रखते हुए हर एक को चाहिए कि एक दूसरे को माफ़ करे। जब माफ़ कर दिया तो फिर तस्करा नहीं हो कि नहीं तूने यूँ किया था, नहीं ये नहीं, फिर भूल जाओ उसको। अपनी डिक्शनरी से उसको कलम ज़द कर दो, वो क्या बोलते हैं, छेक डालो, निकाल दो, खलास, माफ़ 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 इज़ माफ़। फिर बद्दुआ भी नहीं, जो बद्दुआ दी तो इंतकाम ले लिया, जो एक तरह से अब तो इंतकाम मुझसे ले भी नहीं सकते, बद्दुआ कर दी ना, तो अब बस अब खलास, पहले माफ़ ही कर दो बस। बाद लोग बहुत यानी कि जिसको अपने यूँ बोलते कि बहुत जहरीला है, बोलते ना बहुत जहरीला है, इसके दिल में जहर बहुत है, तो जहर बनता ही नहीं, माफ़ करता भी नहीं है। मतलब कुछ एक बार हो गया, बुग़्ज़ बैठ गया तो निकलता नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह हमारा दिल जो है वो रहम उसमें डाल दे, हम रहम दिल हो जाए, संग दिल ना बने। मुंतकिमुल मिजाज शख्सियत कहेंगे बाबा बास को। मुंतकिमुल मिजाज और चीज़ होती है और संग दिल और चीज़ होती है ना। अब इसको खैर हमें संग दिल भी क्या, बाज सूरत ऐसी है कि वो किसास लेना चाहता है तो उसका हक है, वो मतलब ठीक है, उसके बेटे को कत्ल कर दे, बाप चाहता कि माफ़ नहीं कर, उसके लिए अफजल है कि वो कातिल वो माफ़ कर दे, लेकिन वो चाहता कि मैं मतलब खून का बदला खून, मैं माफ़ नहीं करता, तो अब ये गुनाहगार नहीं है, ठीक है, नहीं करता। तो इसलिए हर सूरत में हम ये नहीं कहेंगे कि जिससे माफ़ी मांगी गई वो गुनाहगार भी होगा। अब हौज़े कौसर पर आना नहीं मिलेगा, ये वईद ज़रूर है, माफ़ ना करने वाले, ये कातिल के लिए भी है, यानी मकतूल के वारिसों के लिए भी है। ऐसी कोई वजाहत या इसकी शरह नहीं पढ़ी मैंने, इसलिए मैं इसकी कोई शरह नहीं करता। तो इसलिए जो माफ़ नहीं करता इसको मैं गुनाहगार नहीं ठहराता। मैंने वो आपको हदीस शरीफ सुना दी और फ़ज़ाइल बयान कर दिए कि माफ़ कर देना चाहिए। अब इसको मैं संग दिल भी नहीं कह सकता कि जो माफ़ नहीं कर रहा ये संग दिल है, हो सकता है इसका दिल ऐसा दुख गया कि इसके जहन बन नहीं रहा माफ़ करने का। तो हमें इसके दिल में उतरना चाहिए, उसके बार बार माफ़ी मांगे, उस पर बार बार कुछ एहसानात करे, उसको तोहफे तहाइफ दे,
اس کے سامنے عاجزی کا بازو بچھائے, روئے, گڑ گڑائے, پاؤں سے لپٹے, تو کبھی تو معاف کر دے گا یار, رحم آ جائے اس کو. تو ہم خالی یار ویری سوری, کیا سوری, نہیں یار معاف کر دو, نہیں یار میں معاف نہیں کرتا. تو اب آپ بولو کہ پتھر دل ہے, سنگ دل ہے, بے رحم ہے. اب تم نے اس کے دل کا قیمہ کر دیا, کو ایسا دل دکھایا, 4 آدمیوں کے سامنے ایسا ذلیل کر دیا کہ ٹینشن کے مارے اس کو 4 دن تک نیند نہیں آئی, اور اب ویری سوری. تو اس طرح ٹھیک ہے, اس کا ذہن نہیں بنتا. تھوڑا گڑ گڑائیں, روئیں اس کے سامنے, کہ ہاتھ جوڑیں, پاؤں پکڑیں, مجھے معاف کر دو. یعنی ایسا انداز اختیار کرے کہ اس کا ذہن بن جائے اور معاف کر دے. جیسا قصور ویسی معافی, یہ سمجھ میں آتا ہے. کہ اگر جیسے کہ چلتے چلتے کسی کو بازو لگ گیا تو آپ نے ویری سوری, تو انہوں نے نیور مائنڈ, اور چلے گئے مسکرا کر, دونوں نکل گئی. یہ معمولی سی تکلیف تھی. آپ کسی کو اٹھا کر ڈھاڑ کر کے رکھ دیا, ویری سوری, تو وہ اٹھا کر گھونسا ہو سکتا ہے رکھ دیا کہ لے سوری. تو ایسے کیسے صلح ہوگی یار؟ جیسا قصور, وہ جیسی شخصیت, جیسا آدمی. اب بڑا آدمی ہے, بڑی شخصیت کا مالک ہے, معمولی سی انسلٹ اس کی نیند اڑا دے گی. جیسے وہ تعزیرات میں بھی تو ہے نا, کہ ایک کی تعزیر تو یہ کہ اس کو کوڑے مارو, کوڑے کی جہاں گنجائش ہے تو کوڑے مارو. اب دوسرے کی تعزیر قاضی کی سمجھ میں اتنی آئی, وہ قاضی شرعہ ہو جب, اب تو ایسی صورتیں نہیں ہیں, قاضی شرعہ ہو اور وہ دیکھے کہ یہ بہت معزز آدمی ہے, اس کو کوڑے کی حاجت نہیں ہے, اس کی اصلاح میں اتنا ہی ہے کہ سب کے سامنے اس کو ڈانٹ دے. آپ نے یہ حرکت کی, مثال دی میں نے, اس کو 4 آدمیوں کے سامنے ذلیل کر دیا تو وہ اس کی ناک کٹ گئی. وہ معزز آدمی اب کبھی اس کو بھول نہیں کرے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ